friends, myself Anmol Jain from Department of Computer Science and Engineering from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today we will discuss the concept of the CLR parser and LLR parsing table. So, before understanding the CLR and LLR parsing table, it is expected that all of you have gone through the SLR parsing table. So, if you have not go through the SLR parsing table, please go through the SLR parsing table first, then come to the CLR parsing table. So, if we compare to the CLR parsing table with the SLR parsing table, then there are certain differences. So, let us see that how the CLR1 parser is different from the SLR0, SLR1 parser. So, if we compare the SLR parser, then we calculate the LR0 items, canonical collection of LR0 items, but in CLR we calculate the LR1 set of items, where this one is the look ahead. So, what is the form of the LR1 item? How do we represent the LR1 item in CLR parser? So, this is the form of the LR1 items, that is a production is in the form of A drives alpha dot beta comma A, and this A is known as the look ahead, right. And this look ahead may be your terminal symbol or it may be a end marker. End marker means it may be either a terminal symbol or it may be a dollar, right. So, let us see that how we can compute the LR1 set of items. So, for the construction of LR1 items, we have to compute two functions, one is closure and one is go to, right. So, let us see one by one what the closure says. Closure says that if there is a production A drive alpha dot B beta, I repeat alpha dot B beta. So, what is my intention or what is my focus area is that I will search for dot followed by a non terminal, right. If there is a production like alpha dot followed by non terminal followed by beta, that is any string comma A in closure of I and B drives gamma, जो डॉट के बाद नॉन टर्मिनल आ रहा है, डॉट के बाद जो नॉन टर्मिनल आ रहा है वो नॉन टर्मिनल अगर किसी प्रोडक्शन को ड्राइव करता है तो उस प्रोडक्शन को भी मैं उस आइटम में ऐड कर लेता हूँ, दैट इज बी ड्राइव्स डॉट गामा, उस प्रोडक्शन को भी डॉट लगाकर उस आइटम में ऐड कर लेता हूँ कॉमा बी. सो व्हाट इज दिस बी? दिस बी इज डिफाइंड एज द फर्स्ट ऑफ बीटा ए. व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ बीटा ए? सो दिस इज माई बीटा एंड दिस इज माई ए. जो प्रोडक्शन मैंने यूज़ किया है उसमें डॉट के बाद नॉन टर्मिनल के बाद जितनी भी चीज़ बचती है वो क्या होती है आपकी बीटा, और ए क्या है आपका लुक अहेड. सो दिस बी इज द फर्स्ट ऑफ बीटा ए. वी विल सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, राइट. सेकेंड function that we will use for the construction of the LR1 items, that is the go to function. The go to function says that in each item, जो भी मेरे items compute होंगे उन हर item में मैं क्या चेक करूँगा, that dot followed by x. Now, this x may be your a terminal symbol or it may be a non terminal. ये आपका x जो है that is called the grammar symbol, और grammar symbol may be your terminal symbol or it may be a non terminal symbol. तो मैं go to को कैसे याद रखता हूँ, डॉट के बाद अगर नॉन टर्मिनल या नॉन टर्मिनल कुछ भी आता है तो उसको मैं x डॉट कर देता हूँ. जहाँ जहाँ डॉट x होता है उसको मैं x डॉट कर देता हूँ, राइट, x डॉट. और अगर उस डॉट के बाद कोई नॉन टर्मिनल आता है, उस डॉट के बाद कोई नॉन टर्मिनल आता है तो उसके हिसाब से मैं उसका क्लोजर कैलकुलेट करता हूँ. वी विल सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल नाउ. सो दिस इज द
these are the two functions which we will use for the construction of the LR1 items. So, this is the algorithm for the construction of the LR1 items, all the items, right. So, C is the collection of items and it will start with the closure of S dash drive dot S comma dollar, right. Repeat the following until no more set of LR1 items can be added to set C. We will see the meaning of this line with the help of an example. For each item in C and each grammar symbol X, हर आइटम में हर ग्रामर सिंबल के लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि वो आइटम ग्रामर सिंबल के ट्रांजिशन से कौन सी दूसरे आइटम पे जाता है या मैं कहूँ दूसरे स्टेट पर स्विच करता है. ऐड गो टू ऑफ I, X टू C, उस स्टेट को भी मैं अपने कैनोनिकल आइटम में ऐड कर लेता हूँ. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. Suppose this is the my grammar, that is S drive C, S drive C, C drive small c capital C and C drive small d. This is my grammar, right. So, the first step is augment the grammar. For construction of LR1 item or LR0 item, first step is augment the grammar, that is S dash drive S, and we have to compute the closure of this augmented production as we have written in the algorithm, that we have to compute the closure of this augmented production. So, what I have done, that is the S dash drive dot S, this is the closure. So, we will calculate the closure of this S dash drive dot S. So, what this closure says, this closure says S dash drive dot S comma dollar, डॉट के बाद अगर नॉन टर्मिनल आता है और उस नॉन टर्मिनल से कोई प्रोडक्शन ड्राइव होता है तो उस प्रोडक्शन को भी मैं डॉट लगाकर अपने आइटम में ऐड कर लेता हूँ. सो लेट्स सी, डॉट के बाद क्या आ रहा है आपका कैपिटल एस, और कैपिटल एस किसको ड्राइव करता है आपका कैपिटल सी सी. तो मैंने एस ड्राइव सी सी को भी डॉट लगाकर ऐड कर लिया, दैट इज एस ड्राइव डॉट सी सी कॉमा first of beta A. Now, what will the first of beta A? So, here we can see the first of beta A is, so here if it is nothing, that is nothing is epsilon then dollar, then first of dollar is itself dollar, right. It should be the understanding for the so first of epsilon dollar will be the first of epsilon dollar will be the dollar, right. So, here is a dollar. Now, डॉट के बाद फिर से मैं क्या देखता हूँ नॉन टर्मिनल. सो डॉट के बाद फिर से क्या आ रहा है आपका नॉन टर्मिनल कैपिटल सी, और देखता हूँ क्या ये नॉन टर्मिनल किसी दूसरे प्रोडक्शन को ड्राइव करता है ग्रामर में. तो मैं देखता हूँ कि सी जो है फिर से प्रोडक्शन को ड्राइव करता है, डेट इज सी ड्राइव स्मॉल सी कैपिटल सी. इसको भी मैंने क्या किया डॉट लगा कर लिख लिया, कॉमा फर्स्ट ऑफ बीटा ए. सो व्हाट इज दिस फर्स्ट ऑफ बीटा ए नाउ. सो हियर दिस इज माई बी and this is my beta. So, first of C dollar, first of C dollar. So, first of C dollar अगर आप कैलकुलेट करेंगे then we can easily compute here that the first of C is C and first of C is also D. So, this is my first of C dollar will be the C comma D. So, I can write it here C drives dot C C comma C oblique D, right. Similarly, now C drives dot D, तो इसको भी मैंने D प्रोडक्शन को भी इसमें ऐड कर लिया by adding dot symbol with first of beta A. Again the first of
C dollar will be the C comma D. So this is my I0 item. Now I will use the second function, that is the closer. So closer and go to. So now I will compute the go to function of each state, right. So this is my I0 state. Now I will use the go to. Go to means ये I0 स्टेट किसी भी ग्रामर सिंबल से दूसरे स्टेट पर कैसे जाती है. जो मेरा गो टू फंक्शन है वो क्या है, गो टू ऑफ I कॉमा एक्स. I कॉमा एक्स मीन्स I0 स्टेट पर कोई भी स्टेट पर टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का मूवमेंट. इसको मैं कहता हूँ कि गो टू फंक्शन इज लाइक अ DFA. लेट्स सी, I start with the I0. First I have calculated the I0. Now I0 पर कैपिटल S का मूवमेंट, दैट मीन्स गो टू ऑफ I0 कॉमा S. इसको मैं लिख सकता हूँ गो टू ऑफ I0 कॉमा S. I0 कॉमा S क्या कहता है, जहाँ जहाँ, अब मेरे गो टू डेफिनेशन क्या कहती है कि I0 में जाओ और देखो जहाँ जहाँ डॉट S है वहाँ वहाँ S डॉट कर दो. यही मैंने बताया आपको डेफिनेशन में कि जहाँ जहाँ डॉट एक्स है वहाँ वहाँ एक्स डॉट कर दो. उसके बाद उसका क्लोज़र बनाते हैं. सो इस आइटम में गया I0 में जहाँ जहाँ डॉट एस है, जहाँ जहाँ पूरे आइटम सेट में जहाँ जहाँ डॉट एस होगा वहाँ वहाँ एस डॉट कर दूंगा. तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ डॉट के बाद एस ही है तो मैंने इसका एस डॉट कर दिया, दैट इज एस डैश ड्राइव एस डॉट कॉमा डॉलर. देन कंप्यूट इट्स क्लोज़र. कंप्यूट इट्स क्लोज़र, जो मेरा आइटम आ गया इसका मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्लोज़र. क्लोज़र क्या कहता है कि अगर डॉट के बाद कोई नॉन टर्मिनल आता है, इस डॉट के बाद अगर कोई नॉन टर्मिनल आता है और वो नॉन टर्मिनल अगर किसी प्रोडक्शन को ड्राइव करता है तो उस प्रोडक्शन को भी मैं डॉट लगाकर उस आइटम में ऐड कर लेता हूँ, राइट. सो इसमें डॉट के बाद कोई नॉन टर्मिनल नहीं है, सो लीव इट, इट्स कंप्लीट. नाउ I0 पर कैपिटल C का मूवमेंट, राइट. I0 पर कैपिटल C का मूवमेंट क्या कहता है, I0 में जाइए जहाँ जहाँ डॉट C है, जहाँ जहाँ डॉट कैपिटल C है वहाँ वहाँ कैपिटल C डॉट कर दीजिए. मैंने क्या किया, एस ड्राइव डॉट C को क्या कर दिया, C डॉट C कर दिया कॉमा डॉलर. नाउ कंप्यूट इट्स क्लोज़र. इट्स क्लोज़र मीन्स इस प्रोडक्शन का क्लोज़र. सो व्हाट विल बी इट्स क्लोज़र, डॉट के बाद कैपिटल C. कैपिटल C किसी प्रोडक्शन को ड्राइव करता है, कैपिटल C जो है वो C को ड्राइव करता है, कैपिटल C जो है वो D को ड्राइव करता है. तो मैंने इन दोनों प्रोडक्शन को भी डॉट लगाकर लिख ली, कॉमा फर्स्ट ऑफ बीटा ए. फर्स्ट ऑफ बीटा ए मीन्स फर्स्ट ऑफ C डॉलर. फर्स्ट ऑफ C डॉलर विल बी first of epsilon dollar. This is my B and remaining is this. So first of epsilon dollar will be dollar, right. So take care of it, that first of alpha dot B beta, first of beta A is epsilon dollar. So it is my dollar, again this is my dollar, right. So this is the item 2. We also give the numbers to each state or item. This we call I1, this we call I2. Now we see the movement of I0 स्टेट पर स्मॉल c का मूवमेंट. स्मॉल c का मूवमेंट मीन्स जहाँ जहाँ डॉट स्मॉल c होगा वहाँ वहाँ स्मॉल c डॉट कर दूंगा, उसके बाद इसका क्लोजर. सो C ड्राइव C डॉट C कॉमा C ऑब्लिक D जो है, अब इसके बाद इसका क्लोजर. क्लोजर क्या कहता है, C ड्राइव्स डॉट C एंड C ड्राइव्स डॉट D, राइट. देन इट्स फर्स्ट ऑफ बीटा A. So the first of beta A will be the again C oblique D, because this is again epsilon here. Beta की वैल्यू क्या होगी, epsilon. तो epsilon CD will be the first of epsilon CD will be the C oblique D. Similarly, next we come to the I0 and I0 पर D का मूवमेंट क्या है, जहाँ जहाँ डॉट D होगा I0 स्टेट में, जहाँ जहाँ डॉट D होगा वहाँ वहाँ मैं D डॉट कर दूंगा. तो जहाँ जहाँ डॉट D था
वहाँ मैंने डी डॉट कर दिया। उसके बाद उसका क्लोज़र, क्लोज़र क्या कहता है, अगर डॉट के बाद कोई नॉन टर्मिनल आता है, अगर डॉट के बाद कोई नॉन टर्मिनल आता है और वो नॉन टर्मिनल किसी एक प्रोडक्शन को ड्राइव करता है, तो उस प्रोडक्शन को भी मैं इस आइटम में ऐड कर लेता हूँ, राइट। सो सी ड्राइव्स डी डॉट सी ऑब्लिक डी. So I have seen all the movements, all the grammar, all the movements of each grammar symbol. Either this is a terminal or it is a non-terminal. So these are the non-terminal movement and these are the terminal symbol movements. Now repeat the same process with new items. I1 this is complete. Now I2, I2 पर C का मूवमेंट. अब देखते हैं कि डॉट के बाद इसमें क्या आ रहा है आपका कैपिटल C, डॉट के बाद क्या आ रहा है स्मॉल c, डॉट के बाद क्या आ रहा है स्मॉल d. तो जब जब डॉट के बाद कोई भी सिंबल है उस पर मुझे उसका गो टू देखना पड़ता है. तो I2 में गया, I2 में डॉट के बाद कैपिटल C आ रहा है, तो गो टू क्या कहता है आपसे, जहाँ जहाँ डॉट C है उसका C डॉट कर दीजिए और उसके बाद उसका क्लोज़र बना दीजिए. सो इन दिस केस एस ड्राइव CC डॉट कॉमा डॉलर, क्लोज़र बनेगा क्या इसका, अब इसका क्लोज़र नहीं बनेगा क्योंकि इसमें डॉट के बाद कोई नॉन टर्मिनल सिंबल नहीं आ रहा, राइट. सिमिलरली I2 पर स्मॉल c का मूवमेंट, तो दिस इज माय मूवमेंट ऑफ स्मॉल c. स्मॉल c पे मैं देखता हूँ I2 पर स्मॉल c का मूवमेंट, जहाँ जहाँ डॉट c होगा वहाँ c डॉट कर दूंगा, जहाँ जहाँ डॉट c था वहाँ मैंने c डॉट कर दिया और उसके बाद उसका क्लोज़र. क्लोज़र क्या कहता है कि अगर C किसी प्रोडक्शन को ड्राइव करता है आपकी ग्रामर में, दैट इज़ माय S ड्राइव कैपिटल CC, C ड्राइव CC एंड C ड्राइव D. ये ग्रामर है मेरी, तो C ड्राइव डॉट CC एंड C ड्राइव डॉट D, इसको भी मैंने इस ग्रामर में ऐड कर लिया, राइट. एट द सेम टाइम आई ऑल्सो चेक वन थिंग, that no two states are the same states. I repeat, at the same time I also check that no two states are the same state, right. Same state means उसके फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट्स एक जैसे नहीं होने चाहिए. एक जैसे मतलब even the position of the dot, right. So we also check whether these is this the same with any other state. No. So ऑन द मूवमेंट I2 स्टेट पर C का मूवमेंट कहाँ ले जाता है मुझे I6 पर. सिमिलरली I2 पर D का मूवमेंट, I2 में जाओ जहाँ जहाँ डॉट D है वहाँ D डॉट कर दो, उसके बाद उसका क्लोज़र. सो इसमें क्लोज़र नहीं बनेगा. सो नाउ I2 स्टेट इज़ कंप्लीट. नाउ कम टू द I3 स्टेट. I3 में देखिए आप डॉट के बाद कैपिटल C है, डॉट के बाद स्मॉल c है, डॉट के बाद स्मॉल d है, राइट. तो अगर आप देखते हैं कि I3 पर इस कैपिटल C का मूवमेंट, I3 पर कैपिटल C का मूवमेंट, I3 पर कैपिटल C का मूवमेंट क्या कहता है, जहाँ जहाँ डॉट C होगा वहाँ C डॉट कर दूंगा. सो यहाँ पर देखिए केवल डॉट C कहाँ पर है, डॉट C है, वहाँ मैंने C डॉट कर दिया, डेट इज C ड्राइव C कैपिटल C डॉट कॉमा C ऑब्लिक D. फिर उसका क्लोज़र, इसका क्लोज़र बनेगा. अब क्लोज़र नहीं बनेगा क्योंकि डॉट के बाद अब कोई भी नॉन टर्मिनल सिंबल नहीं आ रहा है, राइट. सिमिलरली I3 पर स्मॉल c का मूवमेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सेम स्टेट आ रही है. सो द मूवमेंट इज़ द सेम स्टेट. सिमिलरली I3 पर D का मूवमेंट जो है वो फिर से आपको I4 स्टेट पर ले जाता है, बिकॉज दिस विल बी द सेम स्टेट. आप देखेंगे कि ये वाली स्टेट जो क्रिएट होगी दैट विल बी अगेन द I4 स्टेट, राइट. I3 has been complete. Now come to the I4. I4 में कोई मूवमेंट नहीं है, दैट मीन्स डॉट के बाद कोई ग्रामर सिंबल नहीं है. Now come to the I5. I5 is also complete क्योंकि इसमें भी डॉट के बाद कोई ग्रामर सिंबल नहीं है. Now come to the I6. So in I6 डॉट के बाद कैपिटल C है, सो कैपिटल C का मूवमेंट अगर आप देखते हैं देन इट मूव्स टू द स्टेट I9 और इसका क्लोज़र बनाते हैं, क्लोज़र नहीं बनेगा. देन I6 पर D का मूवमेंट दैट इज C ड्राइव D डॉट कॉमा डॉलर. देन
देन I6 पर C का मूवमेंट दैट लीड्स टू द सेम स्टेट, राइट. ओके, I6 हैज़ बीन कम्प्लीटेड. I7 हैज़ बीन कम्प्लीटेड क्योंकि I7 में भी डॉट के बाद कोई नॉन टर्मिनल सिंबल नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटेड. I8 इज़ कम्प्लीटेड क्योंकि इसमें भी डॉट के बाद कोई ग्रामर सिंबल नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटेड. एंड I9 इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड क्योंकि इसमें भी डॉट के बाद कोई ग्रामर सिंबल नहीं है, राइट. सो इन दिस वे वी कंप्यूट दी DFA ऑफ दिस ग्रामर. DFA मीन्स हर स्टेट पर हर ग्रामर सिंबल का मूवमेंट, राइट. नाउ वी कम टू दी parsing table. How do we construct the parsing table? So parsing table contains two part. One is the movement of the terminal non-terminal symbols from each state, and one is the terminal symbols from each state, right. So the algorithm is that we will check each item. मैं हर item में देखूंगा. Create the parsing action table as follows. If A is a terminal symbol, that is A drives alpha dot A beta B in I means in each state. हर स्टेट में मैं क्या देखूंगा, डॉट के बाद कोई टर्मिनल सिंबल आ रहा है. डॉट के बाद अगर कोई टर्मिनल सिंबल आ रहा है और वो टर्मिनल सिंबल उसको किस स्टेट पर ले जा रहा है, राइट. जैसे अगर मैं बात कहूँ इसमें I0 की बात करता हूँ, I0 में डॉट के बाद C आ रहा है और ये C जो है, C का मूवमेंट इसको I3 में ले जा रहा है. सो दिस इज माई न्यू स्टेट. दैट मीन्स I0 पर C का मूवमेंट कहाँ ले जा रहा है आपको, I3 पर. I0 पर स्मॉल c का मूवमेंट आपको कहाँ ले जा रहा है, I3 पर. अगर ऐसा है देन एक्शन पार्ट जो है आपका वो क्या कहता है, I, A के करस्पॉन्डिंग आप लिख दो शिफ्ट J या S J. सो इन दिस केस दिस इज माई I, small c and it leads to I J. सो इस केस में क्या है आपका I0 पर C का मूवमेंट आपको कहाँ ले जाता है, I3 पर. तो टेबल में मुझे क्या लिख देना है, 0 और C के कॉम्बिनेशन पर S3. ठीक है, वी विल सी नाउ. सो दिस इज माई पार्सिंग टेबल कि स्टेट नंबर 0 पर स्मॉल c का मूवमेंट मुझे कौन सी स्टेट पर ले आ रहा है, स्टेट नंबर 3 पर, दैट इज I3 स्टेट पर. ठीक है, सो S3. सिमिलरली S0 पर D का मूवमेंट I0 स्टेट पर D का मूवमेंट मुझे कहाँ ले आ रहा है, स्टेट नंबर 4 पर. तो मैं इसको लिखूंगा S4. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर द फिलिंग द पार्सिंग टेबल. सिमिलरली यू कैन चेक द स्टेट नंबर 2 पर C का मूवमेंट. स्टेट नंबर 2 पर स्मॉल c का मूवमेंट कहाँ ले आ रहा है आपको, स्टेट नंबर 6 पर, राइट. तो I2 पर C के मूवमेंट से कहाँ पहुँचूंगा मैं, S6. I2 पर S6. I2 पर D का मूवमेंट, I2 पर D का मूवमेंट मुझे कहाँ ले आ रहा है, I7 पर. तो आई विल फिल हियर S7, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस एल्गोरिथम. अगर ऐसा है तो सेकेंड लाइन ऑफ दिस एल्गोरिथम इज if A drive alpha dot is in state, then action I, A is reduced by A drive alpha. अब मुझे क्या देखना है, अपने आइटम में जाके ये देखना है that A drives alpha dot टाइप का कौन सा प्रोडक्शन है. A drive alpha dot टाइप का मीन्स डॉट सबसे लास्ट में किस आ रहा है कि किसी आइटम में. तो यहाँ में मैं देखता हूँ कि इसमें किसी भी आइटम में डॉट लास्ट में नहीं आ रहा. नाउ वी कम टू द I1 में डॉट लास्ट में पहुंच गया है, डॉट में लास्ट में पहुंच गया है. यहाँ मैं कहूँ कि डॉट के बाद कोई भी ग्रामर सिंबल नहीं है. अगर ऐसा है देन इट शुड बी रिड्यूस्ड. इट शुड बी रिड्यूस्ड बाय दैट प्रोडक्शन एक्सेप्ट दिस मीन्स ऑगमेंटेड प्रोडक्शन, ऑगमेंटेड प्रोडक्शन को छोड़कर. सो लेट्स सी इन I2 देयर इज नो प्रोडक्शन विच इज हैविंग द डॉट एट द लास्ट.
I3 no production in which dot is at the last. हाँ, this is I4 which is having the C drives D dot, that means dot जो है वो आपका लास्ट में पहुंच गया है, राइट तो I4 में मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू राइट reduce by this production. Reduce by this production means I4 में C के मूवमेंट से कहाँ करना पड़ेगा, रिड्यूस बाई R3. R3 मीन्स मैं आगे नंबर दे देता हूँ, दैट इज S ड्राइव कैपिटल CC, दिस इज प्रोडक्शन नंबर 1, S ड्राइव सॉरी C ड्राइव स्मॉल c कैपिटल C प्रोडक्शन नंबर 2 and C drives D, this is production number 3. So, reduced by R3. Similarly, स्टेट 4 में आप D के करस्पॉन्डिंग देखें, स्टेट 4 में D के करस्पॉन्डिंग दिस R3, D के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, D डॉट फिर से पहुंचेंगे हम, then it will be the R3, right. Now come to the state number 8. We will see state number 8. तो बाकी आपने I4 में है, I5 में डॉट है लास्ट में, I5 में डॉट है, I5 डॉट साइन है एंड किसके करस्पॉन्डिंग, डॉलर के करस्पॉन्डिंग आपने क्या कर दिया, R1, दैट इज रिड्यूस बाय प्रोडक्शन नंबर 1, राइट, रिड्यूस बाय प्रोडक्शन नंबर 1 बिकॉज दिस इज माय प्रोडक्शन नंबर 1, राइट. नेक्स्ट सिमिलरली 8 में आप देखेंगे, देन देयर इज ए प्रोडक्शन 8, this is my production number 2 and dot is at the last position. Similarly and so on. Second part is the go to part. Go to part जो है that deals with the movement by the non terminal symbol. So I0 पर कैपिटल S का मूवमेंट कौन सी स्टेट पर ले जाता है, I1 पर. I0 पर कैपिटल S का मूवमेंट कहाँ ले जाता है, I1 पर. सिमिलरली I0 पर कैपिटल C का मूवमेंट कहाँ ले जाता है, I2 पर. सो गो टू पार्ट जो है वो भरा जाता है आपका नॉन टर्मिनल से, नॉन टर्मिनल के मूवमेंट से, और एक्शन पार्ट जो भरा जाता है वो आपके टर्मिनल सिंबल से. सिमिलरली गो टू ऑफ स्टेट नंबर 2 पर कैपिटल C का मूवमेंट कहाँ ले जाता है, स्टेट नंबर 5 पर. 2 पर कैपिटल C का मूवमेंट कहाँ ले जाता है आपको, स्टेट नंबर 5 पर. सो यहाँ पर मुझे केवल क्या लिखना पड़ता है, उसका नंबर. सो ये क्या है आपका, फॉर ऑल नॉन टर्मिनल्स कैपिटल ए, इफ गो टू ऑफ दिस लीड्स टू द नेक्स्ट स्टेट, देन गो टू ऑफ I कॉमा ए इक्वल्स टू जे, दैट इज ओनली इट्स नंबर. ठीक है. ऑल ब्लैंक एंट्रीज आर कॉल्ड एरर्स, जो इससे डिफाइन नहीं हो पाती हैं, दैट आर कॉल्ड द एरर्स, राइट. वन मोर इज दैट इफ एस डैश ड्राइव एस डॉलर, एस डैश ड्राइव एस डॉट है कॉमा डॉलर, then this is called as the accept state. So s dash drive dot s is find in I1 state, and this in I1 state we mark the accept, right. So this is my accept. So in this way we can compute the LR1 parsing table for the CLR1, right. Next is the construction of the LALR parsing table. LLR पार्सिंग टेबल में बहुत कुछ नहीं है. वंस वी हैव कंप्यूट दी CLR1 पार्सिंग टेबल, जस्ट वी सी दैट विच स्टेट्स हैव दी कॉमन और द सेम कंपोनेंट. फर्स्ट कंपोनेंट जिनका सेम है बट दे आर डिफर इन सेकेंड कंपोनेंट. सो फर्स्ट कंपोनेंट मीन्स this is my first component and this is my look ahead is my second component. So we can see that the state number I3 and I6, these are the same in first component but they are differ in
सेकंड कंपोनेंट एंड लुक अहेड, इसमें CD है, इसमें लुक अहेड क्या है आपका डॉलर है. सिमिलरली 4 and 7, स्टेट नंबर 4 and 7, दिस इज C ड्राइव्स D डॉट है एंड 7 इज C ड्राइव D डॉट है. इसमें सेकंड कंपोनेंट CD है, इसमें सेकंड कंपोनेंट डॉलर है, राइट. सो इस टाइप की स्टेट जो होती हैं, इस टाइप की जो स्टेट्स होती हैं, वी मर्ज देम इनटू वन स्टेट. सो मैंने क्या किया, 3 और 6 को मर्ज कर दिया, 4 और 7 को मर्ज कर दिया. जहाँ जहाँ मेरा 3 था वहाँ मैंने 3 6 लिख दिया, जहाँ जहाँ मेरा 4 था वहाँ 4 7 लिख दिया, और स्टेट नंबर 6 और 7 को मैंने क्या कर दिया, अपनी टेबल में से रिमूव कर दिया. सो नाउ द न्यू LALR1 पार्सिंग टेबल विल बी हैविंग नंबर ऑफ स्टेट्स 0 1 2. दिस इज न्यू स्टेट, दिस इज द मर्ज ऑफ द 3 and 6, न्यू स्टेट 4 and 7, 5 8 and 9. These are the number of states in LALR1 parsing table, right. Thank you.